President Ramnath Kovind has appointed the new governor of Karnataka, Madhya Pradesh, Mizoram and Himachal Pradesh. The Union Minister Thawar Chandra Gehlot as the governor of Karnataka, Social Justice and Empowerment. Hari Babu Kambhampati is the governor of Mizoram. Mangu Bhai Chhagan Bhai Patel is the governor of Madhya Pradesh. Rajendra Vishwanath Arlikar is the governor of Himachal Pradesh. Tripura's current governor is Ramesh Bais will move to the Raj Bhavan in Jharkhand. It means the governor of Jharkhand is Ramesh Bais. Bandaru Dattatreya, who was serving as the governor of Himachal Pradesh, is transferred and appointed as the governor of Haryana. It means Bandaru Dattatreya is the governor of Haryana. Karnataka Governor Bajubhai Wala and Jharkhand Governor Draupadi Murmu were not given new roles. Thawar Chand Gehlot is the governor of Karnataka. Mizoram Governor Hari Babu Kambhampati. Mangu Bhai Chhagan Bhai Patel is the governor of Madhya Pradesh. Goa's governor name is P.A. Sridharan Pillai. Himachal Pradesh governor name is Rajendra Vishwanath Alinkar. Haryana's governor name is Bandaru Dattatreya. Jharkhand's governor name is Ramesh Bais and Tripura's governor name is Satyadev Narayan. Which cricketer has become the highest run getter in the women's cricket across the format, overtaking the former England skipper चार्लोट एडवर्ड्स? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर कौन सी महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो मिथाली राज. इंडियन कैप्टन मिथाली राज बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन वुमेन्स क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट, ओवरटेकिंग former England skipper Charlotte Edwards. CZ Bate of New Zealand is third with 7,849 runs. Stephen Taylor is 7,832 and Meg Lanning is 7,024 round up the top 5. Mithali achieved the feat during the third and final inconsequential ODI against the host England while chasing 220 for a consolation win. भारत की कप्तान मिथाली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड 10,273 को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला बन गई है. न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स 7,849 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. शीर्ष 5 में स्टीफन टेलर भी हैं जो कि 7,832 रन बनाए हैं और मेग लैनिंग हैं जो कि 7,024 रन बनाए हैं. मिथाली राज ने 7वां सांत्वना जीत के लिए 2020 रनों को पछाड़ करते हुए मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच के दौरान उपलब्धि हासिल की. इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे विल इनॉग्रेटेड वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर इन विच कंट्री? भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे? तो इटली. इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे विल embark on an official visit to the United Kingdom and Italy, during which he will meet his counterparts and the senior military leadership of this country. The highlights of the visit will be General Narawane's inaugurate the Indian Army Memorial in the famous town of Cassino, Italy. In the Battle of Monte Cassino during the World War II, over 5,000 Indian soldiers laid down their lives while fighting to save Italy from the fascist force. President of Italy is Sergio Mattarella. Capital Rome. Currency Euro. भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे यूनाइटेड किंगडम और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जिसके दौरान वह अपने समकक्षों और इन देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे. इस यात्रा का मुख्य आकर्षण इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में जनरल नरवणे को भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन होगा. यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
मोंटे कैसिनो की लड़ाई में 5,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली को फासीवादी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हुए अपना प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की स्मृति में बना है। इटली के बारे में इटली का राष्ट्रपति का नाम सर्जियो मटेरेला है। राजधानी रोम और मुद्रा यूरो है। कार्स्टेन वर्डहोम, who was broken the long-standing world record in the 400-meter hurdle during the Bislett Games, in famous from which country? बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ से लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने वाले कार्स्टेन वरहोम किस देश से हैं? तो नॉर्वे से। कार्स्टेन वरहोम, a 25-year-old athlete from the Norway, broke the long-standing world record in the 400-meter hurdles during the Bislett Games. Earlier, the record was held by American hurdler Kevin Young for 29 years. His mark of 46.78 seconds was set at 1992 Olympics in Barcelona, Spain, which was finally broken with an official time of 46.70 seconds by Warholm. About Norway, capital Oslo, currency Norwegian krone, Prime Minister Erna Solberg. नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कार्स्टन वरहोम ने बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ में लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 29 साल तक अमेरिकी हर्डलर केविन यंग के नाम था। उनका 46.78 निशान 1992 के बार्सिलोना, स्पेन में ओलंपिक्स में बना था, जिससे अंततः वारहोम द्वारा 46.70 सेकेंड में आधिकारिक समय के साथ तोड़ा गया था। नॉर्वे के बारे में बात करें तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है और प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग है। Which non-profit venture under the Ministry of Commerce and Industry has won the Most Innovative Investment Promotion Agency 2021 award? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत किस गैर लाभकारी उद्यम ने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 बाय OCO Global. OCO Global is leading authority on foreign investment and offers a range of economic development service products and unique company assessment tools. Invest India, set up in 2009, is a non-profit venture under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. It is the National Investment Promotion and Facilitation Agency. OCO Global द्वारा इन्वेस्टमेंट इंडिया को दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है। OCO ग्लोबल विदेशी निवेश पर एक अग्रणी प्राधिकरण है और आर्थिक विकास सेवाओं, उत्पादों और अद्वितीय कंपनी मूल्यांकन टूल की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इन्वेस्टमेंट इंडिया 2009 में स्थापित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। यह राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। Recently, the government of India has extended the superannuation age of IPO bond LIC chairman M.R. Kumar up to। हाल ही में भारत सरकार ने IPO के लिए बाध्य LIC के अध्यक्ष M.R. कुमार को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितना कर दी है? तो 62 वर्ष। The government has extended the superannuation age of IPO bond LIC chairman M.R. Kumar to up to 62 years by making the amendments to the Life Insurance Corporation of India Staff Regulation 1960. The changes made in the rules will be called the Life Insurance Corporation of India Amendment Rule 2021.
According to a government notification, it is to be noted that the retirement age for the top executive of the majority of PSUs is 60 years, barring a few exceptions, including the State Bank of India. About LIC, founder is Government of India, founded 1 September 1956, headquarter Mumbai, parent organization Ministry of Finance and Government of India. सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के स्टाफ विनियम 1960 में संशोधन करके आईपीओ के लिए बाद एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार को सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तक बढ़ा दी है। नियमों के लिए में किए गए बदलाव को भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ संशोधन नियम 2021 कहा गया है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई सहित कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों के शीर्ष अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। एलआईसी के बारे में संस्थापक भारत सरकार है। स्थापित 1 सितंबर 1956 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। मूल संगठन वित्त मंत्रालय भारत सरकार है। के.एन. भट्टाचार्य जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डैश इन त्रिपुरा। के.एन. भट्टाचार्य जी को त्रिपुरा के नए डैश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो लोकायुक्त के रूप में। वेटरन एडवोकेट कल्याण नारायण Bhattacharya ji has been appointed as the new Lokayukt in Tripura. He has been appointed to the post for 3 years with effect from 1st July. Lokayukt Act has been in force in Tripura since 2008 and in 2012. The first Lokayukt was appointed in Tripura Bhattacharya is the third Lokayukt in the state and the first to be hold the post of the lawyer. Former Gujarat and Guwahati High Court Judge Pradeep Kumar Sarkar was the first Lokayukt in Tripura. Capital of Tripura is Agartala. Chief Governor is Ramesh Bais, but now a time the governor of Tripura is Satyadev Narayan Arya. And the Ramesh Bais is the governor of Jharkhand. It means Jharkhand's governor Ramesh Bais. Chief Minister Biplab Kumar Dev. वयोवृद्ध अधिवक्ता कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी को त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद पर 1 जुलाई से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। लोकायुक्त अधिनियम 2008 से त्रिपुरा में लागू है और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं और वकील के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। गुजरात और गुवाहाटी एचसी मतलब कि हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त थे। इन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा का राज्यपाल रमेश बैस थे उस वक्त, लेकिन अभी यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के बिप्लब कुमार देव हैं। Which bank has become the second most valued list public sector bank with a market capitalization of over 50,000 crore? कौन सा बैंक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजी के साथ दूसरे सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट वैल्यूड list public sector bank with a market capitalization of over 50,000 crore. As state discounts privatization of the state-owned lender, its share have appreciated nearly 80% on the BSE in the past of 1 month. IOB Indian Overseas Bank stood with an MCAP of rupees 51,887 crore, pushing PNB 46,411 crore and Bank of Baroda 44,112 crore to third and fourth position respectively as per the data available on BSE. About IOB, its headquarters is Chennai. CEO Partha Pratim Sen Gupta, founder CTM Chidambaram Chaitya, founded in 10 February 1937, Chennai.
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। राज्य में स्वामित्व वाले ऋणदाता के स्ट्रीट डिस्काउंट निजीकरण के रूप में इसके शेयरों ने पिछले एक महीने में बीएसई पर लगभग 80% की बढ़त दर्ज की है। बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आईओबी के पास 51,887 करोड़ रुपए का एम कैप है, जो पीएनबी का 46,411 करोड़ रुपए और बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के 44,112 करोड़ रुपए हैं। इससे यह दूसरे स्थान पर है। आईओबी के बारे में मुख्यालय चेन्नई में है। सीईओ पर्थ प्रीतम सेनगुप्ता हैं। संस्थापक एम चिदम्बरम चटियार हैं और स्थापित इसका 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में हुआ था। Reserve Bank of India imposed a penalty on 25 lakh on which bank for non-compliance with certain provision of Direction on Cyber Security Framework in Banks। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक पे। Reserve Bank of India imposed a penalty of 25 lakh on Punjab and Sindh Bank for non-compliance with the certain provision of Direction on Cyber Security Frameworks in Banks. This penalty has been imposed in the exercise on power vested in RBI under the provision of the Section 47A(1)(c) read with the Section 46A(4)(i) and 51(1) of the Banking Regulation Act 1949. About Punjab and Sindh Bank founder Veer Singh, founded 24 June 1908, MD and CEO S. Krishnan। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 को धारा 146(4)(1) और 55(1) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग से लगाया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में संस्थापक वीर सिंह है। स्थापित 24 जून 1908 को है। एमडी और सीईओ एस कृष्णन है। हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री हैज़ टेकन ओवर द मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल High Speed Rail Corporation Limited. He comes with more than 20 years of experience in the implementation of mega rail infrastructure project. He's worked as chairman and managing director of Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), a schedule CPSE under the Ministry of Railways for the close to 9 years. सतीश अग्निहोत्री ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्हें मेगा रेल अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन में 20 से अधिक वर्ष का अनुभव है। उन्हें रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के प्रबंधन निदेशक के रूप में काम किया है, जो लगभग 9 वर्ष तक रेल मंत्रालय के तहत अनुसूची ए CPSE है। Name the Indian origin woman who will travel to the space aboard VSS Unity of Virgin Galactic। उस भारतीय मूल की महिला का नाम बताइए जो वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी। सिरिसा बांदला। इंडियन ओरिजिन वुमेन सिरिसा बांदला will travel to the edge of the space aboard VSS Unity of Virgin Galactic, which is scheduled to fly on July 11 from New Mexico. This is significant as she will be the third woman of the Indian origin to go to the space after the Kalpana Chawla and Sunita Williams. The 34-year-old Sirsa Bandla hails from the Guntur, Andhra Pradesh in India. भारतीय मूल की महिला सिरिसा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी में सवार अंतरिक्ष के
किनारे की यात्रा करेंगी, जो 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला होंगी। 34 वर्षीय शीर्षा बांदला भारत में आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली हैं। Recently, the US Space Agency NASA has extended the tenure of its near-Earth orbit Wide Field Infrared Survey Explorer (NEOWIS) न्यू वाइस टेलीस्कोप by how many years? हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया है? 2 साल। 2 years. Recently, the US Space Agency NASA has extended the tenure of its Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer telescope by 2 years. After this expansion, this new Earth Object Hunting Space Telescope of NASA will work till June 2023. हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में 2 वर्ष का विस्तार किया है। इस विस्तार के पश्चात नासा का यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक कार्य करेगा। Recently, US troops have effectively ended their military operation by vacating which country's largest airbase after 20-year-long war. हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लिए लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है? तो सही आंसर है अफगानिस्तान। Recently, US troops have effectively ended their military operation by vacating Afghanistan's largest airbase after a 20-year-long war. On 11 September 2001, the terrorist attack in America killed about 3,000 people. हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। थैंक यू।